कर्नाटका के मैसूर में तालिबा गैंगरेप मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुलजिम की तलाशी जारी है। पुलिस अफसर प्रवीण सूद के मुताबिक सभी मुलजिम छोटे मोटे काम करने वाले हैं, लेकिन वो अदालत से गुजारिश करेंगे कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। याद रहे कि मैसूर के चामुंडी हिल्स इलाके में तालिबा अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी। इसी दरमियान कुछ बदमाशों ने बाइक रोक ली और दोनों से रुपए की मांग करने लगे। रकम न देने पर मुतासिरा के दोस्त को जख्मी कर दिया गया और तालिबा को अपने हवस का शिकार बनाया गया। पुलिस कमिश्नर डी चंद्रगुप्ता ने मौका वारदात का दौरा कर स्पेशल टीम बनाकर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस बसवराज हुकूमत को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता रही है। We have been able to arrest 5 out of 6 accused. They are all resident of Tirupur in Tamil Nadu. One of them possibly is juvenile. It's subject to confirmation and verification. He could be about 7. So he'll be treated as juvenile. But as all of us know, in case of heinous crimes after Nirbhaya, anyone above 16 years can also be tried in a normal court, so we will have to see his exact age. So 5 out of 6 people have been arrested. The efforts are on to arrest the 6 people, and the case has been detected. We will also request judiciary to expedite and take it as a special case for fast trial, and our objective would be, as we had done earlier in Manipal case and Agarbabi case, to get the conviction as early as possible. That is the long-term solution to these problems which keep occurring now and then. So I want to congratulate my team, and we have also announced good reward for the team. गिरफ्तार मुलजिमीन के बारे में डीजी प्रवीण, They are one of them is a carpenter, one of them is a wireman, 2 of them are drivers doing menial jobs in Tirupur. And now and then they were coming to Mysore, sometime bringing vegetables, fruits, etc., or any load. So with the drivers, friends would also come while going, because they are coming to a big city, a peaceful city, a beautiful city like Mysore. They would have tendency to have some party and go back. But this time, before going back, they did this very serious offence for which they are now being arrested. I would say every case of such nature is extremely challenging when the accused are not known. It becomes all the more challenging when we are not able to elicit any information from the victim. मैसूर गैंगरेप की वजह से मुश्किलों में घिरी बसवराज हुकूमत के लिए उनके वुज़रा और मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे हैं। रियासत के वजीर दाखिला ने के इतनी देर तक मुतासरा के बाहर होने पर सवाल पर ऑपोजिशन ने उल्टा सवाल खड़ा किया है, जबकि वुमेन एक्टिविस्ट का कहना है कि भारत है अफगानिस्तान नहीं जहां खवातीन के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जाए। वहीं ऑपोजिशन वजीर दाखिला के बयान की हिमायत करने वाले दूसरे वजीर पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुतासरा के कमी तलाश रही है। This shows the culture and the attitude of the BJP ministers and the leaders of the BJP. Anyway, we have sent a team. Already my party team is already on the job. We wanted to know the truth of it. Whether the girl has gone or individual or not, it is the question of giving protection to every citizen of this state. That she should be free, and this shows that the minister are encouraging this type of rape, and with the name of in this incident the minister calling that the congressman is raping him itself, Home Minister telling itself shows their attitude. It's most unfortunate this kind of statement made by the ministers, because saying that these women should not go after 7 o'clock, it is definitely not acceptable. Now the duty of the government to protect the lives of the people and give security to women.
ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो स्टेटमेंट जो कर रहे हैं इस मोस्ट नॉट डिफरेंट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, व्हाट एल्स। Today we had one articles come in our papers that every day some incidents are happening against men whole of Karnataka. So the total law and order is not up to the mark. So intelligence failure is there. Such kind of incident never happened in Karnataka. जिस तरह का जो gang rape हुआ, जो recording हुआ, most inhuman. And now the ministers, they should deal with the iron hand and they should not make such kind of irresponsible statements. जो इंसिडेंट हुआ है कर्नाटक में वो निर्भया प्रकरण जैसा है और इससे है ना महिलाओं के अंदर चिंता बढ़ी है और हम इसका कड़ी विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। मगर इससे भी ज़्यादा हम इनका खंडन करना पड़ेगा जो पूरा इस समाज का लोगों का रक्षा करना गृह मंत्री है और बीजेपी का जो मिनिस्टर्स है उनका जो बयान आ गया इस इंसिडेंट के बाद वो बार्बरिक है, वो क्रूएलिटी है कि मैं ये कहना चाहती हूँ अफगानिस्तान में जैसा तालिबान कहते हैं कि महिला बाहर नहीं आना, महिला नहीं फिरना, महिला उद्योग नहीं करना, महिला घर के अंदर रहना, कि बीजेपी का ये जो मिनिस्टर्स है इनका बयान देखे तो मुझे ऐसा लगता बीजेपी का एजेंडा भी तालिबान जैसा है। ये तालिबानी स्टेटमेंट है इनका, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ महिला इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, मगर महिला के बिना समाज चलता नहीं। इस मामले में तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी जुड़ गए हैं। शाहिद, सबसे पहले आपसे मामले की अपडेट जानना चाहेंगे, क्या तफसीलात है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अब तक? देखिए इरम, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को आखिरकार मिली है। तकरीबन 5 लोगों को जो है इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। आज परवीन सूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो है ये 6 लोग थे जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और शख्स की तलाश जारी है। ये गिरफ्तारी तमिलनाडु के त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। बताया जा रहा है कि ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और मैसूर इनका आना जाना था और उन्होंने तमिलनाडु से चामराजपेट तक का सफर किया था और उसकी जो बस की टिकट थी वो मौके वारदात पर मिली और उसी बिना पे जो है ट्रैक किया गया और साथ ही साथ जो मोबाइल टावर है उसके जरिए भी जो है ट्रैकिंग हुई है, जिसके नतीजे में जो है आज उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस को कहीं ना कहीं 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया बताया जा रहा है, जिसमें से एक माइनर भी है, यानी कि 16 या 17 साल का एक लड़का भी है, लेकिन उसे उन्होंने कहा कि एग्जामिन करना बाकी है, लेकिन हमें अंदाजा है कि एक माइनर है। बताया जा रहा है कि ये जो अभी पुलिस को कामयाबी मिली है, अब इसके बाद जो है ये लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि और कोई इसमें इन्वॉल्व है क्या, किस तरह से हुआ था, और उसके बाद में जो है ये अब कस्टडी में लेने के बाद जो है अब कोर्ट को पेश करेंगे और कोर्ट से मुतालबा करेंगे कि वो पुलिस कस्टडी में उसे दें ताकि और मजीद इस मामले की छानबीन हो सके और इसके ताल्लुक से और भी जानकारी हासिल करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर की जा सके और ताकि एक पैगाम जाए लोगों में, क्योंकि नाराजगी देखी जा रही थी कर्नाटक भर में, क्योंकि जो गिरफ्तारी होनी थी वो काफी ताखीर हुई है। काफी लंबे वक्त से जो है 3 दिनों के बाद में जो है ये गिरफ्तारी सामने आई है। उसके बाद जो है 3 दिनों तक लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो सामने आ रहा था। लोगों का मुतालबा था कि मैसूर जैसे शहर में अगर इस तरह का वाकया हो सकता है एक टूरिस्ट प्लेस में, तो आने वाले दिनों में किस तरह से हालात होंगे कर्नाटक के, उस बात को लेकर काफी लोगों में एक डर था, एक गुस्सा था और कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस बात का एहसास था और हुकूमत इस पर काफी संजीदगी से काम कर रही थी। इसमें एडीजीपी को भी नियुक्त कर दिया गया था और साथ ही साथ जो यहाँ के डीजीपी हैं परवीन सूद ने भी इस पर काफी स्ट्रांगली नोटिस लिया और उन्होंने एक टीम बनाई जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है और आखिरकार जो है उन्हें 5 लोगों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब देखना होगा कि जो एक शख्स फरार है उसको किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे ट्रैक किया जाएगा। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि ये लोग चूंकि कर्नाटक के नहीं हैं, ये काम के सिलसिले में आया करते थे और लेबर क्लास के लोग हैं, काफी लोकल ये इनका काम हुआ करता था। कोई कारपेंटर है तो इस तरह के ही मुलाजिमीन उसमें शामिल है। तो इन लोगों को वक्तन फक्तन वो कर्नाटक आया जाया करते थे और जब काम उनका खत्म होता तो वो शराब पीने के लिए किसी सुनसान जगह जाया करते थे। तो उसी वक्त वो चामुंडी हिल्स में गए थे और उसी वक्त ये वाकया पेश आया। तो काफी जानकारी जो है पुलिस ने इकट्ठा कर ली है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है परवीन सूद जो डीजीपी है उन्होंने काफी साफ इसमें
बताया, डिटेल्स की जानकारी दी और अपनी टीम को भी उन्होंने मुबारकबादी दी। कहीं ना कहीं एक जो मुअम्मा था इसका जो है हल होता हुआ नजर आया है कहीं ना कहीं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस इसको किस तरह से लिखती है, किस तरह से छानबीन करती है और किस तरह से कोर्ट के सामने सबूत जो है पेश करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इस तमाम जानकारी के लिए।